So class 10th students, today's topic is community and conservation. In yesterday's class, you studied about the classification of forest on the basis of administration. Once again, you tell me what are the three types of forest? Reserved forest, protected forest, and unclassed forest. Okay. In this topic, community and conservation, as it is clear by its name, community means the people, the local people who are living in the periphery of the forest or near the forest, and how they are engaged in protecting the forest. So you will get various examples in this paragraph that how the local people who are living very close to the forest are involved in the protection of forest. This is a very good step for the protection of forest. So for this, you write a question from here. Question number 5. 1. Describe how communities have conserved and protected forests and wildlife in India. So all of you open your geography fair copy and write this question. Question is, describe how communities have conserved and protected forests and wildlife in India. Anupriya, are you writing? Arsalan, unmute करके बताओ. Yes, ma'am. Now repeat the question. What have you written? Describe how communities have conserved and protected forest and wildlife in India. All of you written? Aman, Krishna, Anirudh, Anshika, Anupriya सबने लिखा? हाँ ठीक है. तो क्वेश्चन को समझ गए? Describe how communities have conserved and protected forest and wildlife in India. कम्युनिटी मतलब लोकल पीपल जो हैं वहाँ जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. आज हम लोग यही पढ़ेंगे और लिखेंगे. मैम वर्कशीट कर ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज. Community and conservation. Conservation strategies are not new. है ना, पहले थोड़ा समझ लो फिर इसको पॉइंट्स में लिखवाएंगे. ठीक है. Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of traditional communities. फॉरेस्ट पे इंडिया के बहुत से ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, वो फॉरेस्ट के आसपास ही रहते हैं, जिसमें कि कई तरह के विलेज पीपल भी हो सकते हैं या फिर स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं वो लोग भी हैं इसके अंदर. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats. ठीक है ना, local people फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का क्या रोल है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं ऐसे कम्युनिटी. और इसी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट से उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. तो पहला एग्जाम्पल देखो, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व. सरिस्का कहाँ है बताओ? राजस्थान. हाँ, in Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act.
अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास ये जो माइनिंग होने लगी, तो माइनिंग जहां भी होगी तो फॉरेस्ट का लॉस होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो उन लोगों ने माइनिंग को रोका। कहाँ के लोगों ने? विलेजर्स ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान फॉट अगेंस्ट माइनिंग। और क्या इन लोगों ने रेफरेंस दिया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रेफरेंस देते हुए माइनिंग नहीं होने दिया। In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government's involvement. कई जगह तो यहाँ तक है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्व भी नहीं होने देते हैं, वहाँ के लोकल पीपल ही इतने अवेयर हैं कि वही लोग फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं। तो एक एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया, यहाँ नंबर 1 लिख लो, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का पहला एग्जांपल हो गया। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. ठीक है, एक फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया आपका। फिर आगे देखें, the inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as Bhairo, Dev, Dako, Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. अब ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ नंबर 2 लिख लो। अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस में, है ना, आसपास जो 5 गांव हैं, वहां के सारे लोगों ने मिलकर क्या किया है बताओ? हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट का एरिया जो है उसको क्या नाम दिया है इन्होंने? भैरोदेव डाको सेंचुरी। सेंचुरी बोलते हैं ना, तो इसको इन लोगों ने इस तरह से नाम दिया है। एंड डिक्लेयरिंग देयर ऑफ रूल्स, तो यहाँ पर ये लोग अपने रूल्स बनाए हैं कि कोई भी इसमें हंटिंग नहीं करेगा और इस तरह से वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कोई आउटसाइड एनक्रोचमेंट नहीं होगा। तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। पहला एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 5 विलेज, हाँ, अलवर राजस्थान, ये सेकंड हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अभी जो तुमने क्वेश्चन लिखा है ना, उसको एग्जाम्पल दे दे के प्रूफ करना है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए आपके। फिर आ जाइए यहाँ इस पैराग्राफ में, सेक्रेड ग्रूव्स मतलब जंगल का एक हिस्सा जिसको वहाँ के लोकल पीपल क्या करते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सेक्रेड ग्रूव्स है, मतलब बहुत वर्शिप के लायक है, पवित्र है, इसमें कोई कुछ गैदरिंग हंटिंग कुछ नहीं करेगा। अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, तो फॉरेस्ट के एक हिस्से को वहाँ के ट्राइबल पीपल या जो भी लोकल कम्युनिटी है वो उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स, और उस हिस्से में कोई एंटर नहीं करेगा। तो ये अनटच्ड एरिया रहेगा फॉरेस्ट का, जिसमें सारे प्लांट और एनिमल बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। यहाँ देखो, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in the pristine form called sacred groves. है ना, एकदम प्रिस्टाइन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में जंगलों को बचा के रखा है इन लोगों ने। कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जैसे जो फॉरेस्ट से अपना लाइवलीहुड तो लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के एक हिस्से को बिल्कुल सेक्रेड ग्रूव्स डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है ना, उसमें किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट, कोई हंटिंग नहीं होगा। तो एज ओल्ड बिलीफ है, मतलब पुराने समय से ही ऐसा बिलीफ रहा है, पेड़ पौधे की पूजा करना, जानवरों को वर्शिप करना, ये सब है ना। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched. हाँ, पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट है ये। सेक्रेड ग्रुप का क्या है? पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड, है ना। लोकल पीपल ने इसको बैन करके रखा है कि फॉरेस्ट के इस हिस्से में जिसको सेक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर किया गया उसमें कोई एंटर नहीं करेगा।
तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसका हेडिंग क्या लिखोगे? सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है ना? तो 3 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट कहाँ से मैम? सेक्रेड ग्रूव्स, इसका हेडिंग लिखना सेक्रेड ग्रूव्स। पूरा भी लिख सकते हो, सेक्रेड ग्रूव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। ये थर्ड पॉइंट हो गया। मैम कौन सा थर्ड पॉइंट हुआ? कहाँ तक मैम? सेक्रेड ग्रूव्स, Sacred group अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स and रेयर rare स्पीसीज। species. है ना? इसमें पूरा नहीं लिखने की जरूरत है आपको, इसमें से थोड़ा सा 2 इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना। मैम सेक्रेट ग्रुप्स तक लिख देंगे। हाँ, जैसे इस तरह से कुछ सेंटेंस यहाँ चेंज करना है कि देयर इज अ बिलीव टू कीप द फॉरेस्ट वर्जिन, है ना? These patches of forest are part of large forest and have been left untouched by local people and any interference with them is banned, है ना? ये फॉरेस्ट का एक हिस्सा ये लोग सेक्रेड मान करके, मतलब जैसे वर्शिप के पर्पज से मान के उसको अलग कर देते हैं और उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा बताओ? सर इसका टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। पहले पॉइंट में हेडिंग लिखना सरिस्का टाइगर रिजर्व और इसका यहाँ पे ऐसे डिटेल दे देना 3-4 लाइन बस। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? 5 inhabitants of 5 villages. हाँ, 5 विलेज इन अलवर अरावल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। हाँ, बस ये हेडिंग हो गया। और तीसरे में हेडिंग हो गया सेक्रेड ग्रुप्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड Sacred रेयर। crops, a wealth of diverse and rare species. हाँ, मैम सेक्रेट ग्रुप का एग्जांपल भी देंगे? सेक्रेड ग्रुप्स का दे सकते हो, है ना? वो डिपेंड करता है कि अब लॉन्ग आंसर में आया है तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं अगर 5 मार्क्स का है तो, है ना? उसी से रिलेटेड ये भी है, सर्टेन सोसाइटीज, यहाँ देखो, certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial मतलब बहुत पुराने समय से ऐसे ऐसे ट्रीज वो लोग प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जो हजारों साल से हैं, उसको उसकी पूजा होती है ना? तो जैसे आदिवासी लोग हैं ना, जिसको ट्राइबल पीपल कहते हैं, छोटा नागपुर जो है ना, प्लेटो, छोटा नागपुर, वहां पे बहुत लोग ट्राइबल हैं, कई जाति के ट्राइबल हैं, जिसको एक को कहते हैं मुंडास, एक को कहते हैं संथाल, है ना? तो मुंडा और संथाल जो ट्राइबल पीपल हैं वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ Kandamba. एंड कदम्ब, है ना? कदम और महुआ ट्री की पूजा करते हैं। अब ऐसे वाले ट्री ना बहुत पुराने पुराने मिलेंगे जो कि हजारों साल पुराने हैं, क्योंकि हजारों साल से उनको कई जनरेशन से वो लोग उसकी पूजा करते आए हैं। और भी ऐसे ट्रीज हैं, है ना? उड़ीसा के ट्राइबल, द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टमरिंड एंड मैंगो। हाँ, टमरिंड मतलब इमली का पेड़, तो इमली के भी ऐसे ही पुराने पुराने पेड़ हैं बहुत, और मैंगो के जिसकी पूजा करते हैं लोग वेडिंग के टाइम में। और भी ट्री है, आंवला ट्री, पीपल ट्री, बनियन ट्री, सब देखते हो ना, यहाँ पे भी पूजा होती है। पटना में भी तुम देखोगे कोई कोई जो वट सावित्री ये सब पूजा का दिन होता है तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है उस दिन, है ना? कभी 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 पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब कि कुछ, हाँ, और ये सारे जो ट्रीज है ना, मैंगो, पीपल, बनियान, दे आर द सोर्स ऑफ ह्यूज ऑक्सीजन, है ना? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे बड़े बड़े पेड़ों से ना बहुत ऑक्सीजन निकलता है। तो ऐसे पेड़ जगह जगह पर होने भी चाहिए, चाहे वो विलेज हो या टाउन हो, है ना? टाउन एरिया में तो और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि खाली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, रोड्स ये सब बन जाते हैं और पेड़ों की कमी हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है इन सब चीजों से। तो ये जितने भी है ना, पीपल ट्री तो एक एग्जाम्पल है मॉनसून फॉरेस्ट का। ये जो पीपल ट्री है ना, सबसे बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है ये पीपल ट्री।
और ये सारे ट्री भी उसी कैटेगरी में आते हैं, बनियान, पीपल, महुआ, ये सब। तो पूजा लोग ऐसे ही नहीं करते थे, उसके पीछे यही सब साइंटिफिक रीजन था, है ना। तो वो अभी भी, हाँ बताओ। मैम बिलीफ भी होता है। हाँ, वो धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ होता है, और धर्म तो हमेशा अच्छी चीजें ही बताता है ना, जो आदमी के लिविंग के लिए जरूरी है वही बताया जाता है धर्म के अंदर। यस तो मैम। पूजा होती है इन सारे पेड़ों की। पेड़ों का कुछ नाम याद रखना, बस तुमको शॉर्ट में यही लिखना है कि द ट्रीज लाइक टमारिंड, महुआ, बनियान, पीपल, आंवला, नीम, तुलसी एक्सेट्रा वर्शिप्ड। ठीक है ना। नीम का ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ इंडिया में, है ना। नीम ट्री, उसका भी वर्शिप होता है। गॉडेस की पूजा में ना नीम ट्री का इंपॉर्टेंस है ना। देवी माँ की, दुर्गा जी की पूजा होती है ना, उसमें नीम ट्री का ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। यस। तो सिर्फ ट्रीज का नाम लिख दोगे और कि ये ट्रीज की पूजा होती है, ठीक है ना। और कुछ ये ट्राइबल पीपल का नाम दे दो, मुंडास, संथाल, ये सब ट्राइबल पीपल है। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स। अब देखना आगे तुम देखोगे कि कुछ एनिमल्स भी हैं जिसकी पूजा होती है ना। तुम टेम्पल्स में जाओगे तो देखोगे कि पहले से ही मंकीज, रैट्स या डियर, इस तरह के एनिमल हैं जिनको कि पाल के रखा जाता है। वो अपने ही उनका वो एरिया घर बन जाता है ना। Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals. है ना। स्प्रिंग मतलब झरने, पानी जहाँ गिरते हैं नेचुरल मैनर में माउंटेन स्लोप से। फिर माउंटेन के पीक्स, है ना, जैसे कैलाश पर्वत है, एक एग्जांपल तुमको देते हैं, है ना। प्लांट्स में अभी बहुत सारे नाम देख लिए। एनिमल्स में मंकी की पूजा भी होती है इंडिया में, है ना। मंकी ही नहीं, आपको रैट्स, काऊ, बहुत सारे एनिमल हैं। काऊ, डियर भी है कई सारे एरियाज में। You will find troops of macaques and langurs. मेकाक भी मंकी का वैरायटी है, और लंगूर भी क्या है, मंकी का वैरायटी है। लंगूर का टेल जो होता है बहुत लंबा होता है ना। और मेकाक का जो है टेल थोड़ा अलग ढंग का, छोटा और ये होता है, हेयरी होता है। They are fed daily. These animals are fed daily and treated as a part of temple devotees, है ना। टेम्पल के ही ये डिवोटीज माने जाते हैं। अगर मंकी है, तुम वाराणसी में जाओ वहां की हनुमान मंदिर में, तो पूरे कैंपस में हजारों मंकी वहां रहते हैं और उन सबको लोग खिलाते हैं। In and around Bishnoi village in Rajasthan, herds of black bug, चिंकारा, है ना, एक हिरण का प्रजाति है, एक डियर का प्रजाति है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक बग कहते हैं। तो ब्लैक बग की पूजा होती है बिश्नोई विलेजेस में। नीलगाय, हाँ, नीलगाय and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. समझ गए। राजस्थान में खासकर ये तीन एनिमल्स, कौन कौन, ब्लैक बग, नीलगाय और पीकॉक्स, इन सबको बहुत संभाल के लोग रखते हैं, इसकी पूजा की दृष्टि से देखते हैं इन लोगों, इन एनिमल्स को, ठीक है ना। और अगर कोई इसके हंटिंग में इन्वॉल्व हो गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स का भी तुम एक एग्जांपल बना सकते हो। मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट्स में ये आंसर लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ ये सेक्रेड creatures, sacred things like springs, mountain, plant and animals, ठीक है ना। इसका एक पॉइंट बना सकते हैं। Sacred springs, mountain peaks, plants and animals. Sacred मतलब जो पवित्र मानते हैं, जिसको पूजा के लायक मानते हैं। अब एनिमल्स में ये सारे एग्जाम्पल लिख देना। इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे। एनिमल्स लाइक मेकाक, लंगूर, चिंकारा, नीलगाय,
ऐसे करके लिख देंगे एग्जाम्पल, बस। तो कितने पॉइंट हो गए बताओ? मैम 5 points. ये 5th पॉइंट हो गया। Yes मैम. हाँ, तो 5th पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि सम सेक्रेड creatures or creations like springs, mountain peaks, plants and animals, इसका 1 पॉइंट बना लोगे, ठीक है ना? देखो ना, गंगा नदी की पूजा होती है, कैलाश माउंटेन को एकदम सेक्रेड माना जाता है, ऐसी तरह से बहुत सारे झरने, ये सब, और बहुत सारे एनिमल्स, तो ये इसका एकदम एक साथ पॉइंट बना सकते हैं। चलो इसके बारे में कुछ बताओ। सेक्रेड एनिमल्स में क्या क्या एग्जांपल दोगे, बताओ। मैम मैकेक एंड लंगूर. मैम ब्लैक वोल्फ, नीलगाय, पीकॉक, मैकेक और लंगूर। हाँ, ठीक है। These are the part of the temples. These are also treated as devotees or part of the temple. तुम गए हो कहीं ऐसे मंदिर में जहां तुमने कोई एनिमल देखा हो, बताओ। यस मैम। कौन सा मंदिर? वाराणसी में बहुत सारे ऐसे मंदिर, है ना, और राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ की मंकीज भी हैं। एक तो मंदिर ऐसा है जहाँ से बड़े बड़े रैट्स हैं उसके अंदर, और रैट को भी लोग उसी हिसाब से रखे हैं वहां पे, डिवोटीज की तरह ही। अब ये एक्टिविटी देखो, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी प्रैक्टिसेस व्हिच यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन योर एवरीडे लाइव्स दैट कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अराउंड यू। तुमने भी ऐसा कोई काम किया है जिससे कि कोई प्लांट्स या एनिमल का प्रोटेक्शन हुआ हो? प्लांटिंग करते हो घर में, अपने बालकनी में, अपने बैकयार्ड में? यस मैम. हाँ, चलो जिसके पास जितना स्कोप है, जितनी जगह है, उस हिसाब से उनको प्लांट से ये करना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अब कुछ और टॉपिक है वो देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ये सब अपने से लिखोगे ना, लिखाने की जरूरत नहीं है? बोलो कि लिखा दें। मैम लिख देंगे। क्योंकि टाइम तो हम लोग के पास सफिशिएंट है, अभी 2 दिन चलेगा ज्योग्राफी क्लास, और बाकी फिर इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, एक लेसन जो हो रहा था, है ना। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक ही पेज बचा होगा शायद, तो मैम 2 पेज है। हाँ, तो हाँ उसको देख लेंगे हम लोग, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे, और आपको सैटरडे के बाद से एक शॉर्ट समर ब्रेक हो रहा है ना? यस मैम। हाँ मैम 28 तक है। हाँ, 16 मैम तक 7 से 28 अब कितने दिन का? 17th, ये 7th से लेकर के कुछ ही है, देखो हम अच्छा तो उसमें आ गया है, नोटिस में आया हुआ है, देख लेना तो 16th है कि क्या है। शॉर्ट ब्रेक है, कोई बहुत ओके बड़ा मैम। ब्रेक नहीं। अभी हम भूल रहे हैं तो वो उसमें नोटिस में है, उसको देख लेंगे, है ना। मैम 21 तक है। 21 है, देख लो तो। मैम हॉलीडे देख लो तो। तुम लोग देख लो मोबाइल में, नोटिस आया हुआ है। मैम आगे पढ़ाइए। अब यहाँ देखो ये पैराग्राफ, हाँ यही से ना, द फेमस चिपको मूवमेंट, नाम सुने हो कि नहीं पहले से चिपको मूवमेंट का? यस मैम। हाँ, यस मैम. चिपको मूवमेंट क्यों नाम दिया गया?
क्योंकि लोकल मैम लोग हाँ पीपल पेड़ के साथ जाकर चिपक जाते हैं। गले पहले काटे उनको, तब उसके बाद पेड़ हाँ, काटे। पेड़ों के साथ चिपक जाते थे। ये कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं करने पाए, है ना। कोई फर्नीचर इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी आके जब डिफॉरेस्टेशन करना शुरू करती थी तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ों के साथ चिपक तो जाते थे और कोई नहीं डिफॉरेस्टेशन कर सकता था। और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। सिटी हैंड लौट जाते थे। हाँ, फॉरेस्ट बिल्कुल बचा लिए गए और इसके साथ ये लोग एफॉरेस्टेशन भी किए। और चिपको मूवमेंट चलाने वाले तो ये खास करके वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये सब रीजन में बहुत कॉमन हुआ था। तो ये देखो, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयास has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. indigenous मतलब इंडिया के जो ओरिजिनल हैं वैसे ट्रीज लगाने चाहिए। इंडिया के ओरिजिनल प्लांट जैसे ये सब है ना, पीपल, बनियान, नीम, ये सब इंडिया का ओरिजिनल है। तो और ये सब ना मॉनसून क्लाइमेट में बहुत सुटेबल होता है। एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ऐसे बड़े बड़े पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिजिनस ट्रीज जो हैं उनका बहुत अच्छे से इन लोगों ने एफॉरेस्टेशन भी किया, इस तरह के प्लांट्स लगाए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ों को बचाया चिपको मूवमेंट चला के। चिपको मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन चलाया। मतलब उन लोगों ने मिल करके बहुत सारे ट्रीज लगाए। Attempts to revive the traditional conservation method or developing new methods of ecological farming are now widespread. अब ये दूसरा पॉइंट शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ कितना, कौन सा पॉइंट देखे, चिपको मूवमेंट देखे, ये चिपको मूवमेंट। अब यहाँ क्या है, फार्मिंग पे चले आओ। फार्मिंग में भी हम ट्रेडिशनल मेथड को अपनाने लगे हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने तरीके को, ठीक है ना। क्या हुआ था अभी हाल में कि इधर के करीब 20 सालों में 20 साल नहीं, आपको करीब 40-50 साल भी हो गए, हाँ। तो उतने में ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा भी हुआ, इंडिया में बहुत फूड ग्रेन का प्रोडक्शन चाहिए था, सो मिला भी। लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे बैड इम्पैक्ट भी सामने आए। क्या क्या बैड इम्पैक्ट सामने आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में ना HYV सीड बिना फर्टिलाइजर का नहीं हो पाता है। तो और फर्टिलाइजर सॉइल डिग्रेडेड हुआ। हाँ, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ इरिगेशन एंड chemical fertilizers, the soil became degraded. In many parts of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, the quality of soil or the fertility of soil has been degraded due to regular use of chemical fertilizers, irrigation, etc. ठीक है ना। अब HYV सीड ऐसा ही है कि वो उसके लिए बहुत इरिगेशन चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, और फिर फर्टिलाइजर भी उसमें ज्यादा चाहिए। तो जब एक्सेस यूज करते चले जाएंगे हम 30-40 सालों तक लगातार, तो क्या हालत होगी कि सॉइल खराब हो जाता है। तो जब सॉइल खराब होने लगा तो लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग को भी बचा के रखना चाहिए। पहले के समय में जैसे खेती करते थे वो वाले ट्रेडिशनल बीज मतलब सीड्स, तो बीज बचाओ आंदोलन इसी के लिए स्टार्ट हुआ। बीज बचाओ आंदोलन in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. लोगों ने क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस किया कि ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पहले वाले सीड्स को भी बचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसको भी रिवाइव करना है। तो टेहरी में ये किया गया। टेहरी एक प्लेस है ना उत्तरांचल में, लखनऊ में। हाँ, तो मैम लखनऊ में नहीं है, लखनऊ तो यूपी में पड़ गया, टेहरी और नॉर्थ की तरफ है उससे। तो टेहरी में एग्जैक्टली उस जगह पे है जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा रिवर आके मिलते हैं ना, वहां पर।
तो वहीं से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इस आंदोलन का क्या नाम है? बीज बचाओ आंदोलन। इसमें पुराने ट्रेडिशनल बीजों को फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया गया, है ना। और नवदान्या भी वही चीज है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी के लिए काम करती है। तो देखा गया कि भले ही थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होगा लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, है ना, और बहुत सिंथेटिक केमिकल का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकली वायबल भी है, मतलब हर तरह से ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सॉइल रिसोर्स का हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए सॉइल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज एक बार इसकी रीडिंग करो। आज हम इतना ही रखेंगे इस पैराग्राफ तक। द फेमस से स्टार्ट करो। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. enormously successful। हाँ, और पढ़ो। Attempt to revive the traditional conservation method or developing new method of the ecological farming are known widespread. हाँ, Farmer and citizen group like the Bees Bachao and Tolan in Terry and Navdania have shown that adequate levels of the diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable. मतलब इकोनॉमिकली भी ठीक है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इरिगेशन भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं खरीदना है, तो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड क्रॉप का मतलब समझ रहे हो ना, कि कई तरह के क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, बहुत सारे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, और उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, बायो मैन्योर का यूज करेंगे, और इस तरह से सॉइल की लॉन्गिविटी को बढ़ा लेंगे, सॉइल बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। और इसी फार्मिंग को फिर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। सुनते हो ना आजकल बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा, हाँ, काउ डंग का यूज होगा। ठीक है, तो एक और बच्चा इसको रीडिंग करो एक बार। नहीं, अब यहाँ से रीडिंग करो। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल। एक बच्चा एक पैराग्राफ करो तो। Sacred groves, a wealth of diverse and rare species. Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves, the forest of God and Goddess. These patches of forest or parts of large have been left untouched by the local people and any interference with ठीक है, अब कोई दूसरा स्टूडेंट इसको सर्टेन सोसाइटीज। Certain societies reserve a particular tree which they have preserved from टाइम इमेमोरियल, बहुत बहुत पुराने समय से। हाँ, आगे बढ़ो। preserved from time immemorial. The Mundas and Santhal of the Chota Nagpur region worship Mahua and Kandamba